Assalamu alaikum students, my name is Harsharu. I am from Real Scholars College and this lecture is for class 2nd year. Chapter number 17 Electronics, page 279. Students, we have discussed about the formation of P and N type semiconductors from the intrinsic semiconductor by adding the impurities pentavalent or trivalent. Now we will discuss about the topic 17.4, which is PN junction, or we can say a diode, the formation of diode by combining the p-type and an n-type semiconductor. Just recall the formation of p and n-type semiconductors. Students, we added trivalent impurity into a semiconductor which is intrinsic, which has no doping or neither holes or neither the electrons as excess charge carriers. We basically doped a trivalent impurity in an intrinsic semiconductor to make it a p-type semiconductor. P-type semiconductor mean there are excess holes as excess carriers which are responsible for the flow of current through the circuit if we will place this device in the circuit. Now the N-type semiconductor is made by adding N-type or pentavalent impurity in an intrinsic semiconductor. As a result, if we add a pentavalent impurity in an intrinsic semiconductor, we will get electrons in the excess which will be responsible for the flow of current whenever this device will be placed in the circuit. Now we will study about p-n junction. What is a p-n junction? Basically, this name is derived from p and n-type semiconductors, and the junction word means the joint of p and n-type semiconductor. So whenever we will join p and n-type semiconductor physically, then they will form a junction between them. As a result, the electrons from the n-type semiconductor will diffuse towards the p-type semiconductor, which consequently means that positive charges will diffuse from p-type to n-type semiconductor. And in the result of this diffusion, a depletion region will be created. Depletion means that charges will deplete here and here at the boundary between those two n types and p and n type semiconductors, and a potential difference is created across this depletion region or p and n type semiconductor. In case of silicon semiconductor, this depletion region has a potential difference of 0.7 volts, and in case of germanium GE, this potential difference is of 0.3 volts. But we will consider 0.7 volts as our potential difference across this device, which we are calling as a diode. It is a two-terminal device which is placed in a circuit, and current flows and or blocks across this. But why we are discussing this even though this topic is not included in your course, because in the next topic, the rectification, we are using diodes to flow or block the current. That's why we are discussing PN junction or diode in this lecture. So whenever I will discuss about the diode or the blockage or flow of current across the circuit in the circuit, then you had the idea of the diode, that how does it works and how does it blocks or how does it passes the current in the circuit. यानी आपको पता होगा पहले से, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो जब मैं डायरेक्ट बोलूँगा उस रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में कि ये डायोड लगा है और यहाँ पे इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा कि क्यों नहीं हो रहा. इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑल्दो कि आपकी कोर्स में बोर्ड के कोर्स में नहीं है इस दफ़ा, ठीक है. तो पीएन जंक्शन आपने देख लिया कि दो पी और एन टाइप को मिलाने से जंक्शन बन रहा है, जिसकी रिजल्ट में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई डिप्लीशन रीजन बन रहा है. अब होगा ये, जब हम इस डायोड को सर्किट में लगाएंगे तो जो भी पीछे से
आपकी बैटरी वगैरह जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और यहाँ पे नेगेटिव, किसी पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ा होगा डायोड, 2 टर्मिनल डिवाइस है ये, तो वो पोटेंशियल कम से कम 0.7 हो या उससे ज़्यादा होगा तभी इसके क्रॉस करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम कर लेगा अगर कोई और सोर्स, तब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको डायोड को सर्किट में लगाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो सर्किट में लगा के, डायोड को सर्किट के अंदर लगा के उसके अंदर से करंट का फ्लो देखना है अब हमने कि कब फ्लो करेगा करंट और कब नहीं करेगा। इस काम को, ये सर्किट डायोड को सर्किट में लगाने को हम क्या नाम देते हैं, या बैटरी के साथ लगाने में हम क्या नाम देते हैं, बायसिंग। कि हम इसकी बायसिंग कर रहे हैं, यानी अब इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो 2 तरह से हम पोटेंशियल इसको दे सकते हैं, या तो हम इस पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दें, या हम इस पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दें। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव साइड को यानी पी टाइप को जोड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, और जब हम नेगेटिव साइड को, बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप यानी पॉजिटिव साइड से जोड़ेंगे डायोड की पी टाइप से, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। इन दोनों में करंट का फ्लो किस तरह होगा, या आइदर होगा भी या नहीं, ये हम देखते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड, इन विच यू आर सेइंग दैट कि जब आप बैटरी को इस तरह लगाएं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी डायोड के पॉजिटिव पी टाइप से जुड़ा है, तो होगा ये कि यहाँ से होल करंट यानी पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे, जिसका दूसरा मतलब ये है कि यहाँ से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे, क्योंकि बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे, एनर्जी दे रहा है बैटरी उसको। अब चार्जेस को यहाँ तक पहुँचने पर इलेक्ट्रॉन्स को इन चार्जेस से रिपल्शन मिलेगी, यानी ये जो डिप्लीशन रीजन बना है जिसमें 2 कॉलम्स पॉजिटिव और 2 कॉलम नेगेटिव चार्जेस के हैं, ये रिड्यूस होगा। कैसे? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरह यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हुए, ये वाले पॉजिटिव चार्जेस जब ये आगे डिफ्यूज होंगे तो ये इस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आपका डिप्लीशन रीजन अब कितना सा रह गया, इतना सा, यानी डिप्लीशन रीजन आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, डिप्लीशन रीजन आपका कम हो गया। और ये कब होगा? जब आपकी वी वोल्टेज क्या है, वी वोल्टेज आपकी क्या है, इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। अदरवाइज यहाँ से होल्स इतने फोर्स नहीं लगा पाएंगे कि चार्जेस यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हों, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। तो दिस पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल, तभी डिप्लीशन रीजन रिड्यूस होगा, तभी चार्जेस जो हैं वो यहाँ से यहाँ जा सकेंगे। एनीवेज, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड के अक्रॉस कन्वेंशनल करंट अगर लें तो वो इस तरह कुछ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी डिप्लीशन रीजन आपका डिक्रीज कर जाएगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। लेकिन रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा? अच्छा, करंट तो फ्लो करेगा, बट उसके लिए शर्त यही है कि V जो है वो बैटरी की वोल्टेज इस जो डायोड की वोल्टेज है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जब रिवर्स बायसिंग होगी तो क्या होगा? अगेन हम आ गए हैं इस सिनारियो पर, यहाँ रिवर्स बायसिंग। अब पी टाइप को हमने जोड़ा है, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन टाइप को हमने जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इसको हम कह रहे हैं रिवर्स बायसिंग। वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ 0.7 वोल्ट्स का, हमने कोई वोल्टेज दी है ग्रेटर देन 0.7 ही दी है, क्योंकि हमें पता है ग्रेटर देन देंगे तभी करंट फ्लो करेगा। बट अब क्या हुआ? अब की बार ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्जेस से इधर आ गए, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट होकर इधर आ गए। तो यहाँ पे बेसिकली होगा ये
अब चार्जेस इधर जाके इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा खुद निकल के यहाँ आ गया, तो पीछे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। उन पॉजिटिव चार्जेस के क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे मज़ीद एक कॉलम बन जाएगा पॉजिटिव चार्जेस का, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव निकले हैं तो यहाँ पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जो पॉजिटिव निकल के यहाँ आएंगे तो यहाँ पे फिर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मज़ीद चार्जेस यहाँ से निकल के चले गए, यहाँ से भी निकल के चले गए, तो यहाँ से जब पॉजिटिव चार्जेस गए यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बच गया, यहाँ से जब नेगेटिव चार्जेस गए तो यहाँ पे मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो डिप्लेशन रीजन आपका इंक्रीज कर गया। मज़ीद उल्टा काम और मज़ीद यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि डायोड का पोटेंशियल मज़ीद इंक्रीज कर गया। पहले 0.7 पोटेंशियल डिफरेंस था, अब मज़ीद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि अब नंबर ऑफ चार्जेस में ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं रिवर्स बायसिंग का। अब इनके ग्राफ्स भी हैं आपकी बुक में, सब कुछ है, मज़ीद डिटेल भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आपका वो रेक्टिफिकेशन। बट आपने ये अब याद रखना है कि फॉरवर्ड थिंग जब डायोड की होती है, ठीक है, डायोड की, आपका डायोड का सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया था, ये डायोड का सिंबल है। ये चीज़ जो होती है ये एन टाइप का शो करती है और ये चीज़ पी टाइप का शो करती है। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह याद रख लें कि ये जो है ये आपके पास पी बना रहा है और ये आपके पास एन बना रहा है। ठीक है, तो ये पी एन जो है ना इस तरह शो हो रहा है। डायोड की ये सिंबल है आपके पास, जब सर्किट में आप लगाते हैं तो कुछ इस तरह लगाते हैं डायोड, ऐसे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो डायोड है वो, वेट अ सेकेंड, आपके पास जो डायोड है वो किस तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में उसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा, कब, जब आप ये V कितना दे रहे हैं इसकी डायोड की वोल्टेज से ज़्यादा, यानी V मस्ट बी ग्रेटर देन VD विच इज़ इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 और इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.3 वोल्ट्स। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होगा, बट रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, जब आप P टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, और जब आप P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो आपके पास करंट फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से लगा है, ठीक है, यूं। फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से लगा है P टाइप के साथ, और अगर रिवर्स बायसिंग है तो यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना रेक्टिफिकेशन का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उस टाइम आपको अब डायोड के क्रॉस के डायोड कब फॉरवर्ड बायस्ड है, कब रिवर्स बायस्ड है, ठीक है, इसमें आपको मसला नहीं आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि करंट कब फ्लो कर रहा है, कब नहीं फ्लो कर रहा, और क्यों फ्लो कर रहा है और क्यों फ्लो नहीं कर रहा अक्रॉस द डायोड। ठीक है, तो इन पिक्चर्स को गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।